Good morning, class. Good morning, ma'am. Good morning, Morning, ma'am. ma'am. जी हमको पहली तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है हमारी क्लास। दीपिका पेन लो। हूं ना करूं भाई। Yes. So, in the last lecture, we have discussed about our chapter that is inventory valuation. Yes, ma'am. So, what is inventory? What is stock? Yes, class. Yes. बोलो सना. Means stock. आवाज नहीं आ रहा बच्चा आपका. Ma'am, बोलो ना. total number of product which we are ready to supply or Ready sell. to sale. Yes, very good. Yes. Stock, which is anything which is ready to sale. Yes, good. So we have saw the meaning of stock कि जो प्रोडक्ट जिससे हम डील करते हैं, जो वेयर हाउस में है, जो शॉप में है, जो रेडी है फॉर डिस्ट्रीब्यूशन पर्पस और फॉर सेल पर्पस, वट एवर इट इज. बिकॉज इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न देयर मे बी पॉसिबिलिटीज ऑफ कि मैं नहीं सेल करूंगी, देयर मे बी अ डिफरेंट चेन ऑफ सप्लाई ना, कि वहाँ पे बीच में फिर रिटेलर हो सकता है या कैनलाइजिंग एजेंसीज हो सकती है. तो पॉसिबिलिटीज हैं. तो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रेडी है, या तो फिर मैं एज एन ट्रेडर हूँ, मैं डायरेक्ट रिटेलर जैसे प्ले रोल करती हूँ, तो मैंने कुछ खरीदा और किसी को बेच रही हूँ. जो भी हो, जो चीज है जो रेडी है जो बेचने के लिए, उसको कहला जाता है स्टॉक. तो फिर हमने देखा स्टॉक इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव के हिसाब से, लाइक इफ आई एम अ ट्रेडिंग कंसर्न, तो व्हाट विल बी द स्टॉक, एंड फॉर अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न व्हाट ऑल थिंग्स विल बी स्टॉक. For a trader, stock is which goods are ready for resale, and for a manufacturing concern, raw material, work in process, and finished goods. These three are stock. Then we saw how to record stock in our book. We know by passing an adjustment entry, by crediting trading account and posting into our asset side, we adjust our closing stock. Why it is important to value stock? Because we need to have proper valuation of our assets as well as to have proper valuation of profit. So today we are going to learn the concept, the methods of valuation of inventory, in which basically there are two methods. There were three methods, in which the third method is now we are not following it, that is LIFO, last in first out method. We are following right now two methods, that is first in first out FIFO method and weighted average cost method. So one by one we'll see. Today we are going to learn little bit about FIFO method, right? As name itself says that this method assumes that the items received first are issued, that is sold or consumed first, so that the latest items are in stock. In this method, an issue is valued at the oldest rate, which the closing stock is valued at the latest rate. ये जो चीजें हैं, जब हम प्रैक्टिकल सम करेंगे तो मे बी पॉसिबिलिटीज है आपको ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आए. FIFO formula assumes that the items of the inventory which were purchased or produced first are consumed or sold first. Consequently, the items remaining in the inventory are those most recently purchased or produced. अब ये मेथड में होता कैसे है?
फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो यहाँ पे देखो दो वर्ड्स दिख रहे हैं, सोल्ड एंड कंज्यूम्ड. यस, there are possibilities because we have learned for a manufacturing concern and for a trader in both the cases the stock may differ. जो ट्रेडर होगा उसके लिए स्टॉक ओनली गुड्स है, दैट इज फिनिश्ड गुड्स. बट फॉर अ मैन्युफैक्चरर वो उसके लिए स्टॉक रॉ मटेरियल भी हो सकता है. जब रॉ मटेरियल होगा तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड बोलते हैं हम लोग. रॉ मटेरियल कंज्यूम हो गया मतलब रॉ मटेरियल यूज हो गया मेरे प्रोसेस के लिए. मैंने रॉ मटेरियल को पूरे मशीन में डाल दिए और अब वो प्रोसेस कर रहा है प्रोडक्ट को बनाने के लिए. तो इसलिए यहाँ पे आपको दो टर्म्स दिख रहे हैं. रॉ इशूड मतलब सोल्ड भी हो सकता है और कंज्यूम्ड भी हो सकता है. मतलब आपको करके मम्मी सोई है, वैसे भी सो रही थी. आप उसको बेच भी सकते हो एज एन ट्रेडर, तो वो भी स्टॉक होता है. और एज अ मैन्युफैक्चरर यू विल कंज्यूम द रॉ मटेरियल टू गो अहेड विथ योर प्रोसेस टू प्रोड्यूस दैट प्रोडक्ट इनटू अ फिनिश्ड गुड्स. तो यहाँ पे ये जो मेथड होता है, ये मेथड के अंदर होता है जो आपने पहले गुड्स खरीदे हैं वो पहले बिक जाने चाहिए. तो इसका मतलब क्या है, जो बाद में के गुड्स है वो पहले बाद में आएगा. मतलब जो पहले आपने गुड्स खरीदा है वो पहले बेचना है, उसके बाद खरीदा है वो बाद में बेचेगा, उसके बाद खरीदा है वो बाद में बिकेगा. जब तक पहले नहीं बिकेगा वो दूसरा नहीं बिकेगा. सिंपली मतलब ये है. फर्स्ट इन, जो पहला अंदर आया मतलब पहले आपने जो खरीदा वो रॉ मटेरियल हो या आपका फिनिश गुड्स हो, जो पहला आपके पास आया वही पहला बाहर जाना चाहिए. बाहर कैसे जाएगा, या तो आप गुड्स को बेचोगे तो पहले आपको वो गुड्स को बेचना है, या तो रॉ मटेरियल होगा तो पहले वो मशीन में जाएगा टू कन्वर्ट इनटू अ फिनिश गुड्स. मीनिंग समझ में आ रहा है? सिंपल मीनिंग बताया. फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब क्या है, हम इसको प्रैक्टिकली सम से तो देखेंगे. Yes, ma'am. तो Yes, ma'am. Yes, ma'am. फिर हम सम स्टार्ट करें. Yes, ma'am. Yes, ma'am. इसके पहले जितना भी कुछ हमने पढ़ा जो भी बेसिक, उसमें किसी को कुछ भी डाउट है? No, ma'am. No, ma'am. तो यहाँ पे मैंने बहुत छोटा सा 4 ही ट्रांजैक्शन है उसके एक सम लिया हमने. फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑफ परचेज एंड इशू फॉर कंजम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ अ रॉ मटेरियल, find out closing stock if the cost is computed on FIFO method basis. That is, आपको ये closing stock को वैल्यू करना है कि कॉस्ट, जो क्लोजिंग स्टॉक का आपका एंड में कॉस्ट आएगा वो आपको वैल्यू करना है कौन से बेसिस पे, फीफो मेथड के बेसिस पे. दैट इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस पे. अभी आपने सम तो लिखा है, नहीं लिखा है आइडिया नहीं है मुझे. आपने सम लिखा है बुक में? No, ma'am. ठीक है, वैसे भी 4 ही आइटम्स है तो हम डिस्कस करते भी लिख सकते हैं. मैं स्क्रीन स्टॉप कर रही हूँ, एक्सेल शेयर कर रही हूँ, 2 मिनट दीजिएगा. My Excel sheet is visible. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो हमें दोनों देखना पड़ेगा. तो एक काम कर सकते हैं, इसको हम कॉपी कर सकते हैं.
यस, तो सम को ही हमने यहाँ पे लेके आ गए। तो सम में कुछ ट्रांजैक्शंस दिए गए हैं, कंपनी का डेट है 2014, उसमें से ईयर है, सॉरी, उसमें से डेट नीचे दिया गया है 1 जनवरी, 2nd, 3rd एंड 4th जनवरी का 4 ट्रांजैक्शन है आपके पास। ट्रांजैक्शन में परचेज एंड सेल, इशू मतलब सेल, नोट डाउन करो कहीं पे भी, इशू मतलब सेल, राइट, या तो कंज्यूम, दोनों भी पॉसिबिलिटीज है जैसे हमने पीपीटी में देखा। तो यहाँ पे कुछ इन रिस्पेक्ट ऑफ रॉ मटेरियल लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये इशू मतलब क्या है, यहाँ पे अजम्पशन होगा कंज्यूम किया हुआ है, मतलब इसको फर्दर प्रोडक्ट को बनाने के लिए यूज किया गया है ये यूनिट्स को। तो यहाँ पे कॉलम है परचेज, कंपनी ने 1 जनवरी को 10 यूनिट्स परचेज किया जिसका 1 रुपया वैल्यू था। कंपनी ने 2 जनवरी को 15 यूनिट्स परचेज किया जिसका वैल्यू 1.2 रुपीज 20 था। उस दिन सेल्स के कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुए, सेल्स इन द सेंस यहाँ पे क्या है आपका कंजम्पशन, मतलब उस दिन रॉ मटेरियल कुछ भी कंज्यूम नहीं हुआ। 3rd को 10 यूनिट्स रॉ मटेरियल कंज्यूम हुआ, 4th को 5 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम हुआ। अब हमें ये सम सॉल्व करना कैसे है? दो मिनट दीजिए, मैं फॉर्मेट ड्रॉ करती हूँ, फिर आप ड्रॉ कीजिए। दिशा कुछ पूछना है? नो मैम, सॉरी गलती से हो गया। कोई नहीं। ये हमारा फॉर्मेट होगा, फॉर्मेट ड्रॉ कीजिएगा। Yes, ma'am. है ना, फॉन्ट साइज विजिबल है? हाँ मैम।
हो जाए ना आपका फॉर्मेट तो चैट बॉक्स में यस यस लिखिए, फिर हम आगे बढ़े। यस, तो ऑलमोस्ट यस यस दिख रहा है मुझे। किसी का बाकी है तो अनम्यूट कीजिएगा। नो मैम। तो सब साथ में ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो हम स्टार्ट करते हैं। तो डेट में यहाँ पे बार बार 2014 लिखने की जरूरत नहीं है, इसके लिए हम एक ही बार 2014 लिख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम सिर्फ ईयर बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, डेट ही आ रहा है मुँह से। डेट हम सिर्फ डेट लिखेंगे और मंथ लिखेंगे, या तो कभी कभी मंथ भी सेम होता है तो भी लिख सकते हैं इधर जनवरी करके, पर ठीक है अभी 4 ही ट्रांजैक्शन है तो हम लिख लेते हैं। तो सबसे पहला 1 जनवरी को क्या किया है कंपनी ने? परचेज। परचेज। यस, सबसे पहले डेट लिखते हैं 1 जनवरी। ये एक्सेल है तो ये ऐसे ही ले रहा है, आप 1 और 1 लिखोगे तो भी चलेगा। सॉरी, परचेज यूनिट्स कितना परचेज किया हुआ है? 10। सॉरी, यस, पहले कॉलम्स देखो एक सेकेंड के लिए। डेट, 3 कॉलम परचेज के लिए, 3 कॉलम इशू, मतलब सेल भी हो सकता है, कंजम्पशन भी हो सकता है, और 3 कॉलम क्लोजिंग स्टॉक के लिए। इसका मतलब क्या है? एक तो कंपनी परचेज करेगी, कुछ बेचेगी, तो कुछ बच जाएगा। कॉमन सेंस में से, मतलब इन जनरल हम बात करें तो ये जो परचेज करेगी वो यहाँ पे डिटेल्स लिखेंगे, उसमें से सेल्स को यहाँ पे लिखेंगे। अब परचेज सेल्स पूरा करने के बाद, एड लेस करने के बाद जो बच जाएगा वो दिन में, वो क्या हो जाएगा? मेरा स्टॉक, उसको बोल देंगे क्लोजिंग स्टॉक। अब आज मैंने सुबह 10 यूनिट्स खरीदे, फिर मैंने दोपहर में 5 यूनिट्स बेच दिए, इसका मतलब मेरे पास वो दिन में 1 तारीख की रात को मेरे पास 5 यूनिट्स थे। यूनिट्स बच जाए। यस, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक। उसको हम फेक नहीं देते, हम उसको रिकॉर्ड करेंगे एज एन क्लोजिंग। तो नेक्स्ट डे का वो मेरा कैरी फॉरवर्ड करेंगे हम लोग उसको, राइट? सिंपल है। यस मैम। प्रॉब्लम समझ में आ रहा है? यस मैम। मैम। में क्या होता है? यूनिट्स, कितना यूनिट्स था, एक कितने का था, उसको इनटू करेंगे तो मुझे अमाउंट मिलेगा। यूनिट्स इनटू रेट इक्वल्स टू अमाउंट। यूनिट्स इनटू, रेट इज इक्वल्स टू अमाउंट। हाँ, सिंपल वर्ड्स में बोले तो एक यूनिट्स मेरा, मैं 10 यूनिट्स है मेरे पास, जिसका एक यूनिट्स का वैल्यू 2 रुपया है, तो कितने रुपए का, कितना यूनिट्स का वैल्यू है मेरे पास? 20। 20। यस, 10 इंटू 2। गुड। तो हम अभी हमारे सम की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहला दिन है 1 जनवरी, जहां पे मेरा नंबर ऑफ यूनिट्स है 10, जिसका रेट है 1 रुपीज। तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 10 rupees. 10 रुपीज। 10 into 1, that is 10 10 rupees. फर्स्ट डे को। और कुछ हुआ है क्या ट्रांजैक्शन? No, ma'am. नो। नो। तो यहाँ पे डैश लिख दो, मैं लिखूंगी ना तो वो एक्सेल है तो लेगा नहीं,
तो यहाँ पे सिर्फ छोटा डैश डाल लो तीनों में, इशू नहीं है उस दिन। तो ओके मैम। उस दिन यूनिट्स है आपके पास कि नहीं है? है है। unit, हमने खरीदा था, किया नहीं इसे, तो ये यूनिट्स एज यूजुअल मेरे कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। 10 इंटू 1 इंटू 10। सबको डे 1 क्लियर है? यस मैम। yes ma'am, नेक्स्ट, आप भी आपके बुक में ना एक डे हो गया तो आप ऐसे लाइन ड्रॉ कीजिएगा, इजी होता है ये सम करने के लिए। अब ये तो बहुत सिंपल है, पर आगे भी जब हम सम करेंगे तो एक डे हो जाता है ना, तो उसके नीचे से लाइन ड्रॉ कर दो, फिर दूसरे डे पे हम पहुंचते हैं। ठीक है, अभी हम सेकेंड डे का देखते हैं। सेकेंड इज 2 जैन, तो 2 जैन मतलब 2 1। 2 जैन को क्या किया है हमने ट्रांजैक्शन? परचेज 15 यूनिट। Yes, again purchase of 15 units, जिसका एक का वैल्यू कितना है? 1.2। Please mute yourself. ma'am, मैम 1.2, 1.2 है। Yes, भावेश, आपको श्रुति क्लोजिंग स्टॉक नहीं समझा। देखो, आप है ना इन जनरल लो, हमारे पास हमने आज का दिन है, सुबह मैंने 10 यूनिट्स खरीदे। ठीक है, 10 यूनिट्स मैंने खरीदा और पूरे दिन में आज वो 10 यूनिट्स यूज नहीं किया मैंने, वो 10 यूनिट्स ऐसी ही है आपके पास। तो आप उसको क्या करोगे, वो आपके पास बचा नहीं है, आपके पास रात हो गया, आपके पास शाम हो गई, तो वो यूनिट्स आपके पास है, हाँ मैम। राइट ना? उसको आप फेंक तो नहीं दोगे, नेक्स्ट डे हम उसको यूज करेंगे। जब हम आगे प्रोडक्शन करने के लिए सोचेंगे तो वो यूनिट्स को यूज करेंगे, इसके लिए वो आपका क्लोजिंग स्टॉक है। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब क्या? जो आपके पास वो दिन के एंड में बच गया है। जैसे आज का दिन है क्या 11 तारीख है? यस, आज का 11 तारीख है, तो हमने आज गुड्स खरीदा था 10 यूनिट्स, तो वो पूरे दिन भर में मेरा गुड्स मैन्युफैक्चरिंग में यूज भी नहीं हुआ, या तो मैं ट्रेडर हूं तो मैंने उसको गुड्स को बेचा भी नहीं। तो एज ऑन डेट, आज का दिन एंड में मेरे पास 10 यूनिट्स है, क्योंकि कुछ ट्रांजैक्शन हुए ही नहीं सेल के। सेल मतलब ना उसको मैंने कंज्यूम किया, ना उसको मैंने बेचा। तो एज ऑन डेट, आज शाम को मेरे पास वो गुड्स है, इसके लिए वो क्या हो गया आपका क्लोजिंग स्टॉक, जो आप नेक्स्ट डे यूज कर सकते हो। कर सकते हो ना श्रुति? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम। भावेश, श्रुति, आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? Okay. Yes, ma'am. श्रुति ने यस बोला, Yes. ठीक है। तो ये फर्स्ट डे का हो गया। सेकेंड डे, वापस मैंने गुड्स खरीदा, कितना? 15 यूनिट्स गुड्स था, जिसका मैम? एक का वैल्यू है, ये 2 क्यों नहीं ले रहे? जिसका एक का वैल्यू है 1.2, राइट? तो कितना अमाउंट हुआ मेरा? 18 रुपए का गुड्स खरीदा मैंने। अभी जब क्लोजिंग स्टॉक, उस दिन इशू तो कुछ है ही नहीं, तो डैश डैश डाल दो यहाँ पे, राइट? अभी क्लोजिंग स्टॉक, जब क्लोजिंग स्टॉक मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो मेरे पास, ध्यान दीजिए यहाँ पे, मैंने जैसे बोला आपको कि आज के दिन मैंने 10 यूनिट्स खरीदे थे, तो आज के दिन कुछ ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं है, सिर्फ मैंने खरीदा था, तो वो यूनिट्स मेरे पास ऐसी ही है। फिर नेक्स्ट डे हुआ 12, मतलब कर सकते हैं ना। यस, नेक्स्ट डे हुआ कल, मैंने और 15 यूनिट्स खरीदा, राइट? इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि वो 10 यूनिट्स कहाँ चले गए, वो 10 यूनिट्स तो आपके पास है ऑलरेडी, राइट?
तो सबसे पहले जैसा मेरा मेथड है ये फीफो, तो मुझे रिकॉर्ड भी सबसे पहले वही करना है जो मेरे पास पहले आया। पहले मेरे पास कौन सा आया? 10 यूनिट्स वाला आया। कितने का था? 1 का था। ₹10 10 रुपया। एक सेकेंड ना, लिखो मत, मैं आपको बता रही हूँ कैसे लिखनी है। अभी मेरे पास कितना है? 15 यूनिट्स है, जिसका 1.2 रेट है, जो 18 रुपए का है। इसको आपको एक साथ लिखना है। पॉसिबिलिटीज नहीं है, वर्ड में करना पड़ेगा। फिलहाल आज के लिए हम एक्सेल में करते हैं, अदरवाइज मैं ये सम फिर इसमें करूँ तो बेटर है वर्ड पे, तो उसमें मैं ठीक तरीके से दिखा पाऊंगी। तो ये ऐसा है, मतलब ये पूरा ट्रांजैक्शन सेकेंड डे का है, राइट। सेकेंड डे में हमने क्या किया? फर्स्ट वाला कंप्लीट हो गया, देखो इसलिए मैंने उसको डार्क से किया है, वो खत्म हो गया, इसलिए आपको मैंने अंडरलाइन मारो वहां पर। अभी सेकेंड डे में मैंने और परचेज किया 15 यूनिट, जिसका वैल्यू था 1.2, जिसका रेट था 1.2, सॉरी, जिसका वैल्यू होता है 18 रुपीज। अभी वो डेट के क्लोजिंग में, मतलब जब मेरा नेक्स्ट डे हुआ, तो उस दिन में मेरे पास 2 टाइप के यूनिट्स थे। एक 1 रुपया वाला यूनिट्स था और एक 1.20 रुपीज वाला यूनिट्स था। तो उसको मुझे अलग अलग ही दिखाना है। क्यों? क्योंकि ये अलग अलग दिनों में आया है। ये मेथड क्या बोलता है? जो पहला आया वो पहला बिकना चाहिए, राइट। तो रिकॉर्ड में उसके हिसाब से ही करूंगी। सबसे पहला मेरे पास 15 यूनिट्स वाला नहीं आया, सबसे पहला मेरे पास 10 रुपया वाला यूनिट्स वाला आया था, जो 1 रुपए का है, 10 यूनिट्स। तो मैंने उसको सबसे पहले रिकॉर्ड किया कि 10 यूनिट्स वो तो पहले ही कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। और उस दिन में मैंने और खरीदा, कितना? 15 यूनिट्स खरीदा, जिसका 1.20 वैल्यू था, कॉस्ट रेट था, सॉरी, जिसका वैल्यू होता है 18 रुपया। ये लिखने के लिए आपको समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. मैम। किसी को भी डाउट है? नो मैम। No, ma'am. मैम। नेक्स्ट थर्ड डे में पहुंचे। यस, ठीक। थर्ड डे है मेरा 3 जैन, तो हमने लिखा है यहाँ पे 3-1। 3 जैन में क्या ट्रांजैक्शन हो रहा है मेरे पास? इशू का Issue. ट्रांजैक्शन। यस, यहाँ पे हम इशू कर रहे हैं। इशू मतलब यहाँ पे कंज्यूम कर रहे हैं, रॉ मटेरियल को हम लोग प्रोडक्ट बनाने के लिए में भी यूज कर रहे हैं। कितना यूनिट्स यूज कर रहे हैं? 10 यूनिट्स, राइट। मेरे पास 10 यूनिट्स है क्या यूज करने के लिए? Yes. मैम। मेरे पास है, मेरे पास 10 है और 15 है, दोनों मिला के मेरे पास 25 यूनिट्स है। यस, मैं उसमें से 10 यूनिट्स यूज कर सकती हूँ। हैं। तो परचेज में डैश डैश डालिएगा, सीधा इशू के कॉलम में यूनिट्स में आइएगा, ठीक है। वहां पे कितना यूनिट्स लिखेंगे हम? 10। 10. Yes. अभी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मतलब मेरे पास सबसे पहला ये दोनों गुट, मेरे पास अभी ये चीज है, हाँ, लास्ट, उसके पहले वाले दिन देखना ही नहीं है, वो 1 जनवरी की बात खत्म हो गई। अब मैं सेकेंड को देखूंगी जब मुझे थर्ड का ट्रांजैक्शन करना होगा। तो सेकेंड को मेरे पास 2 टाइप के गुड्स थे, एक 10 जिसका रेट 1 था, एक 15 जिसका रेट 1.2 था। तो जिसमें से मुझे 10 यूनिट्स बेचने हैं, या तो रॉ मटेरियल है उसको मशीन में डालना है, तो उसके लिए मुझे कंपल्सरीली जो पहले गुड्स आया हमारे पास उसी को यूज करना है पहले। तो पहले मेरे पास ये दोनों में कौन सा गुड्स आया था? 10 वाला या 15 वाला? 10 यूनिट्स वाला। 10 यूनिट। 10 वाला। 10 units. यहाँ पे हम उसको सीक्वेंस में ही लिखेंगे, हम पहले 15 लिखेंगे फिर 10 लिखेंगे नहीं,
पहले आपको जो लास्ट डेट होगा क्लोजिंग वो लिखना है, उसके बाद करंट ईयर का क्लोजिंग लिखना है। ठीक है, तो इसके हिसाब से मेरे पास 10 यूनिट्स वाला जो गुड्स था वो पहले आया था, जिसका रेट था 1 रुपीज, मतलब ये कितना हो गया 10 रुपये। यूनिट। इशू किसी को भी डाउट है इशू में? नो मैम। No, ma'am. No, ma'am. यस, सबको क्लियर हो रहा है इशू? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, अभी उस दिन के पास लिखना पड़ेगा कि उस दिन मेरे पास कुछ यूनिट्स बच रहे हैं क्या। तो ऊपर से देख सकते हैं हम, ऊपर मेरे पास 2 जनवरी को 10 और 15 दो टाइप के यूनिट्स थे, जिसमें से मैंने एक ही यूनिट्स यूज किया हुआ है जो 10 यूनिट्स था। फिर भी मेरे पास यूनिट्स बचे हैं ना अभी? Yes, yes. Yes, ma'am. बचे हैं मेरे पास 15 units. 15 minutes. 15. यस, मेरे पास 25 यूनिट्स थे, जैसे 10 ही बिका है। इसका मतलब मेरे पास ये जो 15 यूनिट्स है वो वैसे की वैसे ही है, कुछ भी यूज हमने उसमें से किया नहीं है। नहीं है। इसको भी मैं क्लोज कर दूंगी, वो डेट हो गया। तीन ट्रांजैक्शन में किसी को भी कुछ भी डाउट है? No, ma'am. नो मैम। सबको क्लियर हो रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? यस। Yes, ma'am. ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते। मेरा नेक्स्ट डे है 4 जनवरी। अब 4 जनवरी को क्या किया है हमने? अगेन इशू Issue. किया है। यस, Issue किया है 5 units. रॉ मटेरियल को हम कंज्यूम कर रहे हैं। कितने यूनिट्स है तो परचेज को देखने की जरूरत ही नहीं है, तो परचेज में डैश 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 डालेंगे, सीधा इशू के पास आके यूनिट्स में 5 लिखेंगे, मतलब 5 यूनिट्स हम कंज्यूम कर रहे हैं। अब जब हम यहाँ पे इशू देख रहे हैं 4 जनवरी को, तो मैं फर्स्ट और सेकंड को देखूंगी ही नहीं, राइट? मैं सिर्फ और सिर्फ 3 जनवरी को देखूंगी। 3 जनवरी को। थर्ड में भी मुझे सिर्फ और सिर्फ क्लोजिंग को देखना है कि क्लोजिंग क्या बता रहा है, कि थर्ड को कितना क्लोजिंग यूनिट्स था, जिसमें से मैं आज 4th को कंज्यूम कर रही हूँ। तो थर्ड को मेरे पास 15 यूनिट्स थे, उसमें से 5 यूनिट्स हम कंज्यूम कर सकते हैं। Yes, ma'am. Yes. यस मैम। Yes, ma'am. 5 यूनिट्स कंज्यूम कर सकते हैं। तो वो 15 यूनिट्स का रेट कितना था? 1.2। तो वो 5 यूनिट्स का भी रेट वही होगा, क्योंकि वो 15 में से ही हमने 5 लिया है। Yes, ma'am. Ma'am. यस मैम। रेट निकालेंगे 6 6, ma'am. 6। Amount is 6. 5 इंटू 1.20, तो मुझे मिला 6। अभी क्लोजिंग, उस दिन का मुझे अकाउंट क्लोज करना है, तो उस दिन में मैं देखूंगी मेरे पास लास्ट डे 15 यूनिट्स थे, जिसमें से मैंने सिर्फ और सिर्फ 5 यूनिट्स को ही बेचे थे, तो भी मेरे पास गुड्स बच रहा है कि नहीं? Yes, ma'am. Yes, 10 units. 10 10 यूनिट। units. पक्का? बाकी लोग 10 unit means अनम्यूट करके नहीं बोलना है तो प्लीज चैट बॉक्स में लिखिए। 10 units जिन यूनिट्स बच रहा है बाकी क्लास? Ma'am. Yes, ma'am. ओके, तो उस Yes, ma'am. बच रहा है 15 था, जिसमें से 5 ही बिका है, तो 10 यूनिट्स बच रहा है, जिसका रेट कितने का है? 1.2. 1.2। 12। 12. वैल्यू होगा 20 रुपीज। इतने ही ट्रांजैक्शंस थे हमारे ये वाले सम में, तो यहीं पे ये सम मेरा खत्म हो जाता है। तो हम क्या कंक्लूड करेंगे?
हमें क्या बोला था सब में कि उनको चाहिए कि वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। इधर क्वेश्चन ये है, क्या बोला है, फाइंड आउट वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑन बेसिस ऑफ फीफो मेथड। फीफो मेथड से हमने सम तो सॉल्व कर लिया, उनको चाहिए कि क्लोजिंग स्टॉक का कितना वैल्यू था। क्लोजिंग स्टॉक मतलब फोर्थ का जो आपका क्लोजिंग है, जो एंड में, यस, तो फोर्थ को जो मेरे पास बच गया है वो कितना है, 10 यूनिट, जिसका एक का रेट है 1.2, जिसका वैल्यू हो जाता है 12 12. रुपीस। यहाँ पे नीचे हम लिख सकते हैं द वैल्यू of closing stock under FIFO method ऐसे नोट करके लिख दीजिए। Ma'am, done. सबको सम क्लियर है? 2 मिनट Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. और पूरा ट्रांजैक्शन को वापस से देखिए।
क्लियर है सबको? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, हमारे पास Yes, 5 ma'am. बचा हुआ है, तो हम दूसरे सम के लिए नोट डाउन करके रख सकते हैं सम। बाकी नेक्स्ट टाइम से सम मैं आपको हमारे गूगल क्लासरूम में भेज दूंगी, तो आपको नोट डाउन करके रखना है अपने नोटबुक के अंदर। अभी हमारे पास 5 मिनट्स है, तो प्रोबेबिलिटी है कि हमारी सम एटलीस्ट सम तो हो जाए, तो कल हम ये सम को सॉल्व करें। Okay, ma'am. From the following particulars, prepare stock ledger by FIFO method. चार कॉलम ड्रॉ कीजिए। डेट, ट्रांजैक्शन, यूनिट्स, रेट। डेट के बाजू में 2014 लिख दीजिएगा, वापस लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सिर्फ डेट लिखते जाइए। फिर 4/1/17/1 21 22/1 25/1 28/1 30/1 31st/1। कितने हो गए? 3 4 5 6 7 8 3 6 7 8 ट्रांजैक्शन में परचेज सेल परचेज सेल सेल परचेज सेल 40 60 50 80 20 100 9। रेट में 30 28 35 29 33 34 26 35। ये है मेरा सम। सम हो जाए तो बोलो, फिर हम ये वाले सम कल करेंगे।
I'm done. एक बार सिर्फ देखती हूँ मैं 4 17 20 22 25 28 30 Ma'am, done. ओके परचेज परचेज सेल परचेज सेल सेल परचेज सेल 40 60 50 80 80 20 100 90 30 28 35 29 33 34 26 35 ठीक है परफेक्ट समझ में आया क्लास हमने आज वो पहला मेथड शुरू किया Yes, ma'am. Yes, sir. Yes, ma'am. ये वाला सम आप ही करिएगा हम ही क्लास में करेंगे आपको होमवर्क के लिए सम मैं दूंगी होमवर्क की कोई कमी नहीं होगी पहले थोड़ा चीजें समझो क्या अलग अलग चीजें आएगी उसके अंदर तो उसके बाद आप खुद ही कर लीजिएगा ठीक है Okay, ma'am. Thank you. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. और कम हो जाएगा ना फिर मैं आपको होमवर्क Thank you, ma'am. देना शुरू कर दूंगी सारी चीजें मैं गूगल क्लासरूम में ही डालूंगी वहीं से आपको सम्स लेना है और करना है ये तो ठीक है क्लास में भी हो जाता है देखो 5 मिनट भी नहीं लगा हमें सम कर लिखने के लिए पर जब वो बाकी के जो भी चैप्टर्स के सम्स होंगे ना वो तो स्पेशली गूगल क्लासरूम में ही डालना पड़ेगा क्योंकि आप एक दिन पहले नोट डाउन कर लोगे अपने बुक में तो हम क्लास में सिर्फ सॉल्व करेंगे ठीक है तो Okay, ma'am. सबने लिख लिया Yes, ma'am. Ma'am. बाय टेक केयर Bye, ma'am. Have a nice Bye, ma'am. day. टेक केयर जरूरत नहीं हो तो बाहर नहीं निकलिएगा ध्यान दीजिएगा Okay, ma'am.